Good morning, students. In the previous video, we have taken up the chapter power sharing, and in that chapter, we have studied the case study of Belgium and Sri Lanka. Then, we have studied the importance of power sharing, that why power sharing is required. Then, we have studied forms of power sharing. In the latest video, we have studied about the forms of power sharing, and we have discussed about the horizontal arrangement of horizontal distribution of powers in power sharing, that was like legislature, executive and judiciary. And we have come to know the terms of checks and balance, that is also very important. Then we have studied about power sharing among government at different level, that can be state government and central government. So students, we have studied that in our country it is known as state government, in other countries it is known as provincial governments also. So we call it state government. And in certain countries there is not any provision of state governments, but still we have it in our country. So students, from here, but in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. जिन भी कंट्रीज़ में हमारी कंट्री की तरह के अरेंजमेंट हैं, सेंट्रल एंड स्टेट के अरेंजमेंट हैं, इन दोज कंट्रीज़, like in our country, in those countries also, it is quite clearly mentioned in the constitution that what are the powers of the central governments and what are the powers of the state government. There is not any kind of confusion in that. So power sharing को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है वहाँ पे. This is what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. So same thing has adopted in Belgium but they refused to do this in Sri Lanka. This is called federal division of power. So it is known as federal division of power when the power is clearly divided into state and central governments, is known as federal division of power. The same principle can be extended to levels of government lower than the state government. अब देखो, हमारे यहाँ पे नाहन में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं. कौन से इलेक्शन होने वाले हैं? वार्ड मेंबर के इलेक्शंस होने वाले हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट से भी एक लो लेवल है, वो क्या है? म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत. गांव में जैसे प्रधान बनते हैं, पंचायत हैं वहाँ पे, राइट? So same principle means powers are again divided. They know municipal corporations and municipal committees, they know what is their power. Panchayats know what is their area. It is quite clear. Let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division of power. तो अब यहाँ पे क्या है? अभी पहले हमने कौन सा लेवल पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर. अब इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. जैसे कि इसमें लेवल्स बन गए हैं. देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सब इक्वल है, राइट? यहाँ पे क्या है? सबसे ऊपर है सेंट्रल, देन स्टेट, देन अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी, रूरल में पंचायत. तो ये क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम. ओके, ये है हॉरिजॉन्टल, ऑल आर इक्वल. सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए. सो वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. Power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. If you remember, community government बनी थी वहाँ पे बेल्जियम में, तो वो इसी तरह की अरेंजमेंट को लेकर बनी थी, जिसमें पावर को रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में भी डिवाइड किया था. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in legislature and administration. सो सम कंट्रीज़ में तो लीगल अरेंजमेंट्स हैं इसके लिए कि हाउ वीकर सेक्शन और विमेन रिप्रेजेंट करेंगी. ठीक है. लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. इफ़ यू रिमेंबर, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें रिजर्व कैटेगरी
ठीक है, SC ST या OBC वाले कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं। सपोज़ 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो 5 के 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे कैंडिडेट्स लाने होंगे, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स लाने होंगे जो क्या हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से होंगे। So that is also a type of power sharing arrangement. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise feel alienated from the government. अब देखो हम ऐसा करते क्यों हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो मार्जिन्स पे सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी फील हो कि हम भी कंट्री की मेन स्ट्रीम में हैं। अदरवाइज़ उनकी तो रिप्रेजेंटेशन होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही बाहर हैं, मार्जिन्स पे हैं। आपने नदी देखी है, नदी के किनारों पे पानी कम होता है, बीच में ज़्यादा होता है। तो जो लोग मार्जिन्स पे होते हैं ना, किनारों पे बिल्कुल, उनको क्या होता है, रिसोर्सेज बहुत कम मिलते हैं। जो बीच में है, मेन स्ट्रीम में है, उनको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। तो मार्जिन्स वालों को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस तरह की अरेंजमेंट्स की जाती हैं ताकि वो भी हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि थोड़ी बहुत पावर उनको भी मिल सके। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। तो इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी पावर शेयरिंग में अपना शेयर मिलेगा। तो यूनिट 2 में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सोशल डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करेंगे। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब देखो, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स एक और तरीके से भी देखी जाती हैं, जैसे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं और बहुत सारी मूवमेंट्स चलती हैं, तो वो कैसे कंट्रोल करती हैं या फिर पावर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब अगर आपको याद हो, अन्ना हज़ारे ने एक मूवमेंट चलाई थी कि लोकपाल बिल बनना चाहिए, बहुत बड़ी मूवमेंट थी। ठीक है, उसके बाद आप देखो अरविंद केजरीवाल भी उसी की मूवमेंट में थे और उस मूवमेंट से फिर वो बाद में CM भी बन गए दिल्ली के, राइट। तो वो जो मूवमेंट थी उसने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया, उस मूवमेंट के कारण हमारी गवर्नमेंट क्या हुई, थोड़ी बहुत प्रेशराइज हुई और ये बिल लाया गया। ओके, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कंटेंडर्स मीन्स पार्टिसिपेटर्स। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। हमें पता है इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपटीशन कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, डिफरेंट पार्टीज़ को लेके कॉम्पिटिशन्स बन जाता है। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो ऑब्वियसली किसी एक के हाथ में तो रहती नहीं, आज कोई लीडर बना है कल कोई बनेगा, हमें भी पता है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अब देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग है, BJP की अलग है, कांग्रेस की अलग है, ठीक है, और भी जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अकाली दल है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, सबकी अपनी अपनी क्या है, आइडियोलॉजीज़ हैं। अब जैसे मान लो BJP जीत गई, वो अपनी आइडियोलॉजी की तरह अपनी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट करेगी। कांग्रेस जीत जाएगी, अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट करेगी, राइट। सो sometimes this kind of sharing can be direct when 2 or more parties form an alliance to contest elections. अब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये मिल जाती हैं और पावर जो है 2 या 3 के बीच में शेयर होती है। जब इलेक्शन जीतने के लिए क्या करते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं, वो अलाइंस बना लेते हैं। इफ़ देयर अलाइंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। सो अगर अलाइंस बन जाती है तो क्या करते हैं, वो पावर को आपस में पहले ही शेयर कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट ग्रुप भी हैं, जैसे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। अब क्या होता है, कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है, ठीक है, अगर इन लोगों के फ़ायदे में नहीं है या बिल्कुल ही इनके अगेंस्ट है, तो ये क्या करते हैं, रैलीज़ निकालते हैं, कैंपेन्स करते हैं। दैट मीन्स दे हैव पावर इन देयर हैंड टू ब्रिंग अ चेंज। तो अगर चेंज करने लायक कोई काम होता है तो चेंज हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। सो दीज लास्ट थिंग्स यू विल रीड बाय योर ओन, ये भी बिल्कुल सेम ही है। सो स्टूडेंट्स, this is all about your chapter, and in the next video we will do the exercise and some important questions also. Revise the chapter, it is a very important one. Thank you students, have a nice day.